Today we will learn some more things what had to be done. और आज हम जानेंगे और कुछ बातें जो हमें करना है. See, some people think on a Sunday I have to take rest, I should be in the house. और कई लोग सोचते हैं रविवार का दिन तो छुट्टी का दिन है, मुझे घर बैठकर आराम करना है. Okay, usually they see a movie, they get up late and they are just in the house whiling away the time. और आम तौर पर वो घर पे होते हैं, वो कोई मूवी देखते हैं, आराम करते हैं और अब समय बर्बाद करते हैं. Now these type of rest you have to take on 6 days. 6 days you have to sleep well. You have to sleep between 6 to 8 hours. There is no day you will sleep less than 6 to 8 hours. और ये जो आराम करना है ये तो आपको हर दिन करना है, 6 दिन आपको करना है, जहां कम से कम 6 से 8 घंटे रात को आपको सोना है. I want to encourage and suggest all the young people, you need to choose jobs which will respect your time. और मैं आप जितने भी जवान लोग हैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप ऐसे नौकरी चुने जो आपका समय का आदर करते हो. Many of us, we are running after money and choosing jobs which will pay us more and we ruin our lives. और कई लोग पैसों के पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं और अपने ही जीवन का नाश कर ले देते हैं. All the time you should choose jobs which will help you to live a right lifestyle. और आप हमेशा ऐसी नौकरी का चुनाव करें जो आपको एक अच्छी सही जीवन शैली का चुनाव कर सके. I'll tell you, when the whole city puts their foot down and work for 8 hours, I tell you, no boss can do anything in the city. और अगर सारे शहर में हर एक व्यक्ति ये कह दे कि हम केवल 8 घंटे काम करेंगे तो कोई भी बॉस फिर और कुछ नहीं कह पाएगा. Nobody, no company can do anything. कोई कंपनी कुछ नहीं कर पाएगा. It is because of people, the general people are willing to work night and day, ruining their own children's lives. People are exploiting them. और क्योंकि ऐसे बेकार से लोग हैं, वो दिन रात वहां काम करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, अपने बच्चों का जीवन भी बर्बाद करते हैं, अपनी जीवन बर्बाद करते हैं. They work not in the right way. वो सही तरीके से काम नहीं करते. Because of that, they have to sleep on a Sunday. और इसी कारण वो रविवार के दिन उन्हें सोना ही पड़ता है. They have to sleep. और सोना ही पड़ेगा. And they have to get up late. और देरी से उठना ही पड़ेगा. And they don't have time for anything else. और किसी अन्य वस्तु के लिए कोई समय नहीं बचता. And they have a lazy evening, lazy afternoon. They just go for a movie. आलस से भरा हुआ एक दिन उनका रहता है, चाहे दोपहर हो शाम हो, फिर वो एक चित्रपट देखते हैं. The whole life gets ruined. सारा जीवन ऐसे ही नाश हो जाता है. Yes, Sunday morning you are ready, you are fresh. रविवार सुबह का दिन आप तैयार हो, आप ताजगी से भरे हुए हो. Let us see what the word says. हम देखेंगे वचन में क्या लिखा है. Leviticus 16:31. लेविया व्यवस्था 16वां अध्याय 31वां वचन. It is a Sabbath of solemn rest for you. यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे. And you shall afflict your souls. It is a statute forever. और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, यह सदा की विधि है. Here it says you have to afflict your soul. और यहां पर लिखा है अपने अपने प्राण को, आप जीव को आपको दुख देना है. So what happens on a synagogue or in the house of prayer? Actually, what should happen? और यहाँ कोई भी आराधनालय में या हाउस ऑफ प्रेयर में सचमुच क्या होना चाहिए? We come here, we say whether the pastor jokes or not and laugh and just meet somebody and go away. और हम यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कि पासबान कोई मजाक कर रहा है कि नहीं, हम हंसते हैं, यहाँ एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और निकल जाते हैं. Eventually, life becomes very difficult for such people. और आम तौर पर इन लोगों के लिए जीवन बहुत ही मुश्किल बन जाता है. Bible, the word of God clearly says it is a time where you afflict your soul. That means there is something you need to do to your soul on a Sunday morning. और यहाँ बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि अपने जीव को आपको दुख पहुंचाना है. उसका अर्थ है आपके जीव के साथ, प्राण के साथ आपको कुछ ना कुछ करना है. Yeah, today I tell you something. Some people go to churches, temples, mosques every day. कुछ लोग हर दिन कलीसिया जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं. It is a ritual, it is a religion. It will never help anybody. ये उनके लिए एक रीति रिवाज बन गया है, ये एक धर्म बन गया है, ये किसी की मदद नहीं कर पाएगा. See, I was talking to a very godly religious woman. मैं एक धार्मिक दैविक एक स्त्री से बात कर रहा था. So she told me, sir, I go to church
morning and evening. और वो मुझसे कहने लगी कि सर मैं सुबह और शाम को दोनों वक्त हर दिन मैं कलीसिया जाती हूँ. You know what she does? She goes there, maybe say some prayers and come back. That's what she is doing. और वो क्या कर रही है, वहां पर जाती है, कुछ प्रार्थनाएं वो बोलती है और फिर वो वापस लौटती That है. is not the purpose of going to a place of worship. लेकिन आराधनालय में जाने का ये उद्देश्य नहीं है. That is not the purpose to go to a synagogue for a और Jew. कोई आराधनालय में जाने का ये उद्देश्य नहीं है It's किसी a यहूदी के लिए. time where you afflict your soul. ये समय है जब अपने जीव को, अपने प्राण को वो दुख पहुंचाता है. Yes, your soul need to be, your soul need to repent and change and cry and go home, repentive sinner. आप अपने प्राण को, आपको पश्चाताप करना है, मन फिराना है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आपको वापस अपने घर लौटना है, So that you will have lot of money in your life, ताकि अपने जीवन में आप अधिक पैसा कमा सके, lot of peace in your family, अधिक शांति आपके परिवार में बना रहे, lot of health in your body. अच्छा सेहत आप अपने शरीर में प्राप्त कर सके. You come for any other purpose, I am very sorry to say these purposes will not be fulfilled. और अगर आप कोई अन्य उद्देश्य के लिए यहाँ पर आते हो तो मुझे क्षमा करें, आपके ये उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे. Because the Bible says how to afflict your soul. बाइबल ये कहता है कि किस प्रकार अपने जीव को दुख पहुंचाना है. Jesus said, you take my yoke, you will find rest for your soul. यीशु ने ये कहा कि तुम मेरे बोझे को उठाओ और तुम अपने प्राण के लिए विश्राम पाओगे. Can we read Matthew chapter 11, मत्ती उसका 11वां अध्याय हम देखेंगे 29. और 29वां वचन. Take my yoke upon you and learn from me, and I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे. There are many disciples of Jesus who are angry. और यीशु मसीह के कई चेले ऐसे हैं जो बहुत ही गुस्से में हैं. There are many disciples of Jesus, they are walking behind Jesus, but they are so stressed. और यीशु के पीछे तो चल रहे हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रेस में है. They have borrowed money everywhere, and they are running everywhere. और उन्होंने सभी से पैसा उधार लिया है और इधर उधर भाग रहे हैं. Disciples of Jesus यीशु के चेले हैं, who came behind Jesus, वो यीशु के पीछे आए थे, who is walking with the Holy Spirit infilling. और पवित्र आत्मा के भरपूर होकर वो साथ चल रहे थे. Let me tell you, you need rest in your soul. मैं आपसे कहता हूं कि अपने जीवन में आपको विश्राम हासिल करना है. Rest in your souls is not automatic, my friend. Just because you sleep on a Sunday morning and have a lazy afternoon, it is not going to produce any rest in our life. और विश्राम केवल अपने घर में आराम करने से या आलस से बैठने से नहीं आता है. Rest comes when you afflict your soul. विश्राम आता है जब आप अपने जीव को दुख Let's पहुंचाते read हो. some more verse. Isaiah chapter 58, यशाया 58 verse 5. 5वां वचन. Is it a fast that I have chosen a day for a man to afflict his soul? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम उस प्रकार करते हो. Verse 3. तीसरा वचन. Why have we fasted, they say, you have not seen. Why have we afflicted our souls, and you have taken no notice? वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने उसको ध्यान नहीं दिया. Every Sunday morning, हर रविवार सुबह you should meet God here. आपको परमेश्वर से मुलाकात यहाँ पर करना है. Otherwise, there is no use in coming to a Sunday morning. वरना यहाँ पर आकर कोई फायदा आपको नहीं होगा. Today morning, there was such an anointing to pray. और आज सुबह का समय ऐसा अभिषेक था प्रार्थना करने के लिए. I don't know how many people really prayed, screamed and shouted from your heart and prayed. और मैं नहीं जानता कितने लोगों ने जोर से आवाज उठाकर चीख कर प्रार्थना किया. Yes. Please understand, when there is an anointing, you should never leave that. और जब कभी कोई अभिषेक वहां पर होता है तो उसे छोड़ ना दे. You should capitalize it. और उसका अधिक से अधिक फायदा उठाए. Anytime. Anytime. कभी भी. If you leave it, you leave it. आप उसे छोड़ देते हो तो फिर छोड़ देते हो. Today was a time of promotion for so many people. और कई लोगों के लिए ये आगे बढ़ने का एक समय था. A time of change for so many people एक today morning. समय बदलाव का था. But how many people really touched that anointing? लेकिन It's a question mark.
कितने लोगों ने इस अभिषेक को छू लिया, ये एक सवाल है। Yeah, I don't look at you, I don't see who is doing what. I want to touch it myself. और मैं आप लोगों को देखते नहीं बैठा हूं, मुझे अपने आप मुझे उस अभिषेक को छूना है। It will change many things of your life. और आपके जीवन के कई चीजों को वो बदल देगा। Whole 6 days your work will become so easy. और 6 दिनों के लिए आपका जो चाल चलन है वो आसान बन जाएगा। Many things will change. कई बातें बदल जाएगी। So that is why when you come in that Sunday morning for any other business apart from touching God, I tell you, it's a waste of life. अगर आप रविवार सुबह यहां पर किसी अन्य कारण से आते हो परमेश्वर को छूने के अलावा, तो वो आपके जीवन के समय की बर्बादी है। Even if you come here to lead worship, you are wasting your time. You are wasting your life. अगर आप यहां पर इस सभा में केवल आराधना की अगुवाई करने आ रहे हो, तो वो भी आपके जीवन का समय की बर्बादी है। You are coming to play music. I tell you, you are wasting your life. अगर आप यहां पे म्यूजिक बजाने आते हो तो आपने जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। Huh? My friends, you need to change on a Sunday morning. आपको रविवार सुबह बदलना है। God is very concerned about this. और परमेश्वर इस बारे में God बहुत wants सोचता है। everybody in the house of prayer to be in the right jobs. परमेश्वर चाहता है कि हाउस ऑफ प्रेयर का हर एक सदस्य सही नौकरी में रहे। God wants you to live long. परमेश्वर चाहता है कि आप लंबी उम्र जिए। God doesn't want you to die fast. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जल्द मर जाएं। God wants you to be happy lives, परमेश्वर चाहता है कि आप एक खुशहाल जीवन happy बिताएं, families. खुशहाल परिवार आपका हो। So that comes out of a restful lifestyle. और ये एक विश्राम की जीवन शैली से आती है। Huh? Some people have no rest in their lives. और कुछ लोगों के जीवन में बिल्कुल विश्राम नहीं Not है। that they are bad people. और ऐसा नहीं है कि वो They बुरे लोग give हैं। their neck to somebody who is eating them night and day. और वो अपना गर्दन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं जो दिन रात उन्हें खा रहा है। Money is not important. पैसा मूल्यवान, You are important. आप अधिक महत्वपूर्ण Your हैं। children are important. आपके बच्चे अधिक महत्वपूर्ण हैं। Your happiness is important. आपकी खुशहाली अधिक Your महत्वपूर्ण joy है। is important. आपका आनंद अधिक महत्वपूर्ण है। Yes. You marry the right people. आप सही लोगों से विवाह You करें। choose the right people. आप सही लोगों का चुनाव करें। You have a right life. It is all in your lives, in your hands. आप सही जीवन शैली आप हासिल करें, ये आपके हाथों में है। Choose the right job. सही नौकरी का चुनाव करें You will have rest in your life. और आपके जीवन में आपको विश्राम मिलेगा। Huh? You will have rest in your life. और निश्चित तौर पे आपके जीवन में विश्राम मिलेगा। Huh? Internet is full of jokes on families. और इंटरनेट अगर आप देखो तो परिवार के विषय कई सारे चुटकुले हैं। Huh? Why we should make family into a joke? और परिवार को ऐसे एक मजाक क्यों बनाकर छोड़ना है? I am in certain group where only men are there because my college mates all are men. They only make fun of their wives. और मैं ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हूं जहां पे सारे आदमी हैं जो मेरे कॉलेज के मित्र हैं, वो केवल अपनी पत्नियों का मजाक उड़ाते रहते हैं। Because I understand how their wives are. क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि उनकी पत्नियां कैसी हैं। It's true. ये सत्य है। It's true. The family life has come on the road. और उनका पारिवारिक जीवन रास्ते पे आ चुका है। Yes, it's a joke. ये मजाक बन चुका है। Maybe the women's thing will have lot of jokes on the men. और शायद से जो स्त्रियों का ग्रुप रहेगा उसमें आदमियों के विषय अधिक जोक बनेंगे। None of these things are actually true, my friends. इनमें से कोई भी बातें सत्य के करीब नहीं है। Huh? I'll tell you, when the wives talk, it is so sweet to listen to. और मैं कहता हूं जब पत्नियां बात करती है तो ये बहुत ही अधिक मधुर होता है सुनने God के लिए। has made every husband a good listener. और परमेश्वर ने हर एक पति को एक अच्छा सुनने वाला बनाया है। And all wives a good talker. और हर एक पत्नियों को अच्छा बात करने वाला It is बनाया our है। core competency. और यही आपकी ताकत है। Huh? So many people don't even like the core competency. They make it a fun and joke. और बहुत से लोग जिसमें जो उनकी ताकत है उसे छोड़कर उसे मजाक बना देते हैं। I'll tell you, family life is the best. It's really a wonderful experience. मैं आपसे कहता हूं पारिवारिक जीवन सबसे सुंदर खूबसूरत If you अनुभव are है। not living a right life, it is you who has messed it up. अगर आप सही जीवन नहीं बिता रहे हैं ये आपकी गलती है, आपने ही इसे बिगाड़ा So है। today you have to change when you go out of this तो place. आज जब आप यहां से बाहर निकलते हो तो आपको बदलना है। Yes, you better change. आप बदले। You better change. You afflict your soul. See, what is afflicting your soul?
और ये बदलाव करना या अपने प्राण को दुख पहुंचाना, इसका अर्थ क्या है? It should repent and say sorry. आपको पश्चाताप करना है Many और people क्षमा don't want to मांगना say है। sorry. बहुत से लोग क्षमा नहीं मांगना चाहते। Yes, they just want to justify what they have done. वो केवल अपने कर्मों का न्याय देते रहते हैं। Over. अब बस खत्म। Your family is over, your finance is over, everything is over. आपका परिवार खत्म हो जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति बुरी हालत हो Some जाती people है, go सब on a खत्म हो जाता है। higher level of justification. कुछ लोग न्याय देने के लिए अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। Yes. If you tell them anything, they begin to cry. और आप उनसे कुछ कहेंगे तो वो रोना शुरू करते हैं। हाँ? आदमी ठंडा हो जाएगा उसके बाद, जोर जोर से रोने का। फिर वो करेक्शन से जोड़ के वो टिश्यू पेपर ढूंढेगा। I'll tell you, tell your neighbor, you afflict your soul. और अपने पड़ोसी को देखकर कहो, तुम अपने जीव को दुख पहुंचाओ। Today, I find people, it's very difficult for human beings to say sorry. और मैं देखता हूं कि लोग, इंसानों को, लोगों को क्षमा They मांगना know बहुत they are मुश्किल लगता wrong. है। वो जानते हैं कि वो गलत है, They justify what they are doing. लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसका वो न्याय देते रहते हैं। Whoever comes and tells you are wrong becomes an enemy of their life. अगर कोई आकर उनसे कहता है कि तुम गलत हो तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। Yes. And especially pastors. Nobody can correct anybody, Against the man of God, how can you talk? और खास तौर पे पासवानों को अगर कोई उन्हें थोड़ा सही लीडर हो कहता गया है, ना, खत्म, वो आधा पास्टर हो गया। My friend, what is the use of leadership when I am not happy? और ऐसे अगुवाई का क्या फायदा, उपयोग है अगर आप खुश नहीं हो? What is the use of a good job when I am not happy? जो एक अच्छी नौकरी होने का क्या फायदा अगर आप खुश नहीं हो? The greatest is joyful life, a happy life. और सबसे बड़ा होगा कि आप आनंद से भरा हुआ एक जीवन, खुशी से भरा हुआ एक जीवन बिताएं। हाँ? Why we marry? हम क्यों शादी करते हैं? झगड़ा करने के लिए। कितना लोग खाली झगड़ा करते हैं शादी में। कोई झगड़ा करने के लिए शादी करता है? नहीं करता है। हाँ? बोलता है शादी के बाद मैं खुश रहेगा। पर कितना लोग खुश है शादी में? तुमको शादी हो गया, मैं देखेगा अभी। The greatest thing which can ever happen to a man after his salvation is his marriage. मैं आपसे कहता हूं, सबसे बड़ी बात उद्धार के बाद एक व्यक्ति के जीवन में जो होता है वो है विवाह। All the young boys, unmarried young boys, और जितने भी जवान लड़के हैं यहाँ पे जिनका विवाह नहीं हुआ है, अपना हाथ उठाएं। हाँ, unmarried young girls, और जितने जवान लड़कियां हैं जिनके विवाह नहीं हुआ है, the greatest thing which can happen to you is your marriage. सबसे बड़ा बात जो आपके जीवन में हो सकता है वो है आपका विवाह। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Don't look at your father and your mother. और अपने माता या पिता की तरफ मत देखिए। They may be a success or a failure. शायद वो जयवंत जीवन बिता रहे हैं या हारा हुआ जीवन बिता रहे हैं। Keep them aside. उन्हें अलग कर रखिए। I am talking the word of God. मैं परमेश्वर के वचन से बता रहा हूँ। Okay, in the garden God got the man married. और परमेश्वर ने वाटिका में उस आदमी का विवाह करवाया। Marriage is a reflection of a garden. और विवाह जो है ये उस वाटिका को दर्शाता है। People mess it up. लोग उसे बिगाड़ देते हैं। हाँ. You follow the word of God, then you will keep your marriage. आप परमेश्वर के वचन को आप रखें, फिर आप अपने विवाह को बचा कर रख पाओगे। Yes, your marriage will become a garden. और It's a restful marriage. आपका विवाह जो है ये एक वाटिका के समान बन जाएगा, विश्राम से भरा हुआ बन जाएगा। Yes. हाँ। Of course, you have to marry the right person. और निश्चित तौर पर आपको सही व्यक्ति से ही विवाह करना है। When you marry the wrong person, then it becomes difficult only. जब आप गलत व्यक्ति से विवाह करते हो तो ये मुश्किल ही हो जाता है। But still, it is your choice. और फिर भी ये आपका चुनाव है। No, you cannot do anything. आप कुछ और नहीं कर सकते। I decided not to marry certain type of girls. मैंने ऐसा निश्चय किया, कुछ प्रकार के स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। I wanted to marry certain type of girls. और ऐसे एक खास तरह के स्त्री के साथ ही मैं विवाह करना Because of चाहता that, it is running till now. और उसी के साथ मैं आज दौड़ रहा हूँ। It is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। Restful life. और विश्राम से भरा हुआ Somewhere जीवन। I feel God wants to bring us into a restful और lifestyle. मुझे लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमें एक विश्राम से भरा हुआ जीवन दे। In fact, let me tell you one more thing. Even the people who are employing others, you should follow Sabbath.
और मैं आपसे कहता हूं, जो लोग दूसरों को आप अपने नौकरी पर रखते हो, अपने व्यापार में, तो आप सबत का पालन करें। See, the Lord says at once, I am the Lord of the Sabbath. और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं सबत का परमेश्वर हूं। Let's turn to James chapter 5. याकूब 5वें वचन को, Today many अध्याय of को us, देखें। we don't give holidays to our maids and men servants and the maid servants. आज हम अपने जो दास दासियों हैं उनको हम कभी छुट्टी नहीं देते, Huh? We don't give. हम नहीं देते। We always ask them to come 7 days and work for us. और हम हमेशा उनसे कहते हैं कि तुम 7 दिन आओ और हमारे घर में काम करो। Let's read James 5. और याकूब का 5वां I अध्याय, will read from verse 4. 4थे वचन को मैं पढ़ूंगा। Indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabbath. देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। It is actually talking about the relationship of a boss and a servant. और यहां पर एक मालिक और उसके सेवक के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में You लिखा read है। from 1 onwards, God will talk to you. आप पहले वचन से आप पढ़ते जाए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। In fact, we have to give even the people who work for us Sabbath, holiday. और सत्य ये है कि हमारे लिए जो काम करते हैं उनको भी हमें सबत का एक दिन देना है। We should always employ people and give them job not more than 8 hours. और हम अगर किसी को हम अपनी नौकरी पर रखते हैं तो उनको 8 घंटे से ज्यादा काम पर मत रखें। We have to see that they go home हम after 8 इसका ध्यान hours. रखें कि वो 8 घंटे के बाद अपने घर जाएं, Yes, because they have to have their family. क्योंकि उनको भी अपना परिवार होना जरूरी है। Even in house of prayer, I have made it very clear that all your business, you keep it till 9 o'clock. और हाउस ऑफ प्रेयर में भी ये बहुत साफ तरीके से मैंने बताया है कि 9 बजे तक ही अपना काम रखे। Why I said like that? ये क्यों मैं कहता हूं? Because family is important. क्योंकि परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। When you have disrespected your family is going through problems. जब आपने अपना परिवार का ही अनादर किया है तो आपका परिवार परेशानियों से गुजरता है। It is very important you respect your spouse, you respect your children and give them the time they want. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने पति या पत्नी का आदर करें, अपने बच्चों का आदर करें, उन्हें सही समय आप उन्हें दें। Even you respect the people who work for you. और आप उनका भी आदर करें जो आपके लिए काम करते हैं। Nobody is a bonded labor for you. कोई आपका दास बनकर नहीं ठहरा है। See, all friendships and relationships after 9 o'clock becomes somewhere it will overboard and it will bring big problem into your life. और जो भी रिश्ते ऐसे 9 बजे के बाद भी बीतते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ी परेशानियां लेकर आए। Any phone calls after 9 o'clock is not permitted in the house of prayer. और 9 बजे के बाद कोई भी फोन कॉल ये अनुमति नहीं है हाउस ऑफ प्रेयर में। It's all bringing disturbances in your personal life, in your financial life. और ये आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में ये परेशानियां लेकर आ I'll रही tell हैं। you something, it's very easy to lose a blessing like that. और ये बहुत आसान है कि आप कोई भी आशीष को इस आसानी से खो Just दें। because you are blessed in certain areas, you just don't be casual and overboard things and go beyond the line, because some things the devil will not forgive you. और कुछ ऐसे अगर स्थानों में आपने आशीष पाए हैं तो आप आगे बढ़ते ना जाए, क्योंकि शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। God is a good God. परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। Always understand. हमेशा इस बात को समझे। But the devil is also know what you are doing with your लेकिन life. शैतान जानता है कि आप क्या कर रहे हो। So you have to follow the principles of the Bible. तो आपको बाइबल में लिखे हुए सिद्धांतों को पालन करना है। Because when I follow the principles, my life becomes like a garden. क्योंकि जब मैं इन सिद्धांतों का पालन करता हूं, मेरा जीवन एक वाटिका के समान बन जाता है।